અત્રે ઉપસ્થિત માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર મહિપતસિંહ ચાવડા સાહેબ, આજના આપણા સમારંભના મુખ્ય વક્તા સન્માનનીય પૂજ્ય ધર્મબંધુજી તથા ભાવનગર સ્ટેટના યુવરાજ શ્રી જયવીરાજસિંહજી, આપ સૌનું મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી વતીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ એક સપ્તાહનો ઉપક્રમ છે જેમાં યુવાનોને કેન્દ્રમાં રાખી અને જુદા જુદા વિષયો ઉપર અહીંયા અલગ અલગ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો નિષ્ણાતો પોતાની વાતો આપણા સૌની સમક્ષ મૂકશે. આજે રાષ્ટ્ર, યુવા અને રાષ્ટ્ર આ વિષય ઉપર આપણે ધર્મબંધુજીનું વક્તવ્ય સાંભળવાના છીએ. આગામી દિવસોમાં યુવા અને સ્વાસ્થ્ય, યુવા અને સમૂહ માધ્યમો, સોશિયલ મીડિયા, યુવા અને ઇકોનોમિક્સ, યુવા અને હ્યુમન વેલ્યુઝ, માનવ મૂલ્યો અને યુવા અને સાહિત્ય, આ જુદા જુદા વિષયો ઉપર શનિવાર તારીખ 8મી સુધી આપણે અલગ અલગ મહાનુભાવોના વક્તવ્યોને માણવાના છીએ. કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણી યુનિવર્સિટીની પરંપરા મુજબ યુનિવર્સિટી ગાનથી કરશું. આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ સૌ જગ્યા ઉપર ઊભા રહી અને યુનિવર્સિટી ગાનને સન્માન આપશો. યુનિવર્સિટી ગાન. अद्भुत स्पंदन नित विलसे अहो मुदामय, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय. वरसता विद्याना वरदान, अही पल पल मुकुरित तेज धवल शुभ ज्ञान, जाति निरतणो प्रज्वलित ज्ञानना ज्योति थकी पराजय, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय. चल के परम पुनित संस्कार, अही केवल निर्मल प्रेम सहज शृंगार, जानुपम उन्नत गौरव ना गुंजन नो वहे सदा कर, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय. कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. થેન્ક યુ દિશા. અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાનોને વિનંતી કરીએ કે આજના કાર્યક્રમને દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા ખુલ્લો મૂકે. જ્ઞાન સપ્તાહ 2020ના આયોજન દ્વારા આ જ્ઞાનનો દીપક આખા અઠવાડિયા દરમિયાન પ્રજ્વલિત થઈને રહેશે અને આપણને સૌને વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોનું માર્ગદર્શન અને ઉદ્બોધન છે એનો લાભ મળશે. સૌનો આભાર. યુવા અને રાષ્ટ્ર આ વિષય ઉપર
આજે આપણી વચ્ચે પૂજ્ય ધર્મબંધુજી વાત કરવાના છે. મને ગીતકાર પ્રેમ ધવન સાહેબના શબ્દો યાદ આવે કે आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए. રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્ર ધર્મ, રાષ્ટ્ર ચેતના વિશે આપણે જ્યારે આજે આ વાતો માણવાના છીએ ત્યારે આપણા કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ માનનીય કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર મહિપતસિંહ ચાવડાને વિનંતી કરું કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાનોનો શાબ્દિક પરિચય આપે અને ઉપસ્થિત સૌનું શાબ્દિક સ્વાગત કરે. માનનીય ડૉક્ટર મહિપતસિંહ ચાવડા સર. જ્ઞાન સપ્તાહના આજના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત ઉપલેટા પ્રાસલાના આજના મુખ્ય વક્તા એવા પરમ આદરણીય આચાર્ય ધર્મબંધુજી, એમની બાજુમાં શ્રીમાન યુવરાજસિંહજી, ભાવનગરના સર્વે મહાનુભાવો, યુનિવર્સિટીના અધિકારીશ્રીઓ, ઈસી મેમ્બર્સ, એકેડેમિક કાઉન્સિલ મેમ્બર્સ, સેનેટ કોર્ટ મેમ્બર્સ, એચઓડીજ, અધ્યાપક મિત્રો, વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો, આજનો આ કાર્યક્રમ આમ તો કંઈક અલગ પ્રકારનો યુનિક પ્રોગ્રામ કહી શકાય. ત્રિવેણી સંગમ એવો આજનો આ કાર્યક્રમ. એક તો આજના દિવસે જ્ઞાન સપ્તાહ, કદાચ ગુજરાતની ભાગ્યે જ કોઈ યુનિવર્સિટી હશે કે જ્યાં આ પ્રકારનો જ્ઞાન સપ્તાહ, નોલેજ વીકનું સેલિબ્રેશન થતું હોય. એના પ્રથમ દિવસે અને વિષયોનું પણ વૈવિધ્ય, વક્તાઓ પણ એ જ કોટીના, એ જ કક્ષાના આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. અહીંથી વાત કરી હિમલભાઈ કે આજે યુવા અને રાષ્ટ્ર એના ઉપર માનનીય આચાર્ય ધર્મબંધુજી વક્તવ્ય આપવાના છે. આવતીકાલે આ જ સમયે, આ જ સ્થળ, યુવા અને સ્વાસ્થ્ય, એમાં અમદાવાદની સિમ્સ હોસ્પિટલના બહુ જ જાણીતા કાર્ડિયો ફિઝિશિયન ઉપસ્થિત રહેવાના છે, ડૉક્ટર અનિશ ચંદારાણાજી. 5મી તારીખે યુથ એન્ડ સોશિયલ મીડિયા, ખૂબ જ જાણીતા લેખક અને મોટિવેશનલ સ્પીકર જય વસાવડા ઉપસ્થિત રહેવાના છે, વક્તવ્ય આપવાના છે. 6ઠી તારીખે યુથ એન્ડ ઇકોનોમી, ખૂબ જ જાણીતા ચિંતક, ફિલોસોફર એવા શ્રી જયનારાયણભાઈ વ્યાસ, એમનું વક્તવ્ય આપવાના છે. 7મી તારીખે આ જ સમયે યુથ એન્ડ વેલ્યુઝ, એમાં BAPSમાંથી ખાસ અબુધાબીથી અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાના છે, એમનું વક્તવ્ય આપવાના છે એવા સ્વામી બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજી. અને છેલ્લો દિવસ શનિવાર 8મી તારીખ યુથ એન્ડ લિટરેચર, કે જેમાં ડૉક્ટર જગદીશભાઈ ત્રિવેદી એમનું વક્તવ્ય આપવાના છે. ખૂબ જ સારા વક્તાઓ મળ્યા છે, વિષયો પણ ખાસ કરીને એ પ્રકારના આપણે પસંદ કર્યા છે. વધુ સમય ન લેતા આજનો જે વિષય, મેં જે કીધું કે અનોખો કાર્યક્રમ એટલા માટે છે, આજનો આ કાર્યક્રમ ત્રિવેણી સંગમ પ્રકારનો છે. એક તો જ્ઞાન સપ્તાહનું ઉદ્ઘાટન, એની શરૂઆત. બીજું, યુનિવર્સિટીનું ન્યૂઝ લેટર બાય એન્યુઅલ, વર્ષમાં એના 2 અંક આપણે પ્રસિદ્ધ કરવાના છીએ. એ પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ યુનિવર્સિટીની અંદર આજે એનું આપણે વિમોચન કરવાના છીએ, જેનું નામ છે કૃષ્ણાર્પણ. કૃષ્ણાર્પણનું વિમોચન પણ આજે થનાર છે. આ કાર્યક્રમનું પણ ઉદ્ઘાટન છે. કૃષ્ણાર્પણ વિશે વાત કરું તો પ્રથમ સત્રની અંદર વિદ્યાર્થી હોય, ફેકલ્ટી હોય, એની રિસર્ચ એક્ટિવિટીઝ હોય, એકેડેમિક એક્ટિવિટીઝ હોય કે પછી કો કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ, એના વ્યક્તિત્વ વિકાસલક્ષી જે પ્રવૃત્તિઓ પ્રથમ સત્રની અંદર થઈ છે એનો ચિતાર આ કૃષ્ણાર્પણની અંદર આપવામાં આવ્યો છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કે અધ્યાપકો એવા હશે કે જેનામાં સર્જનાત્મકતા પડેલી છે. એ સર્જનાત્મકતાને પ્લેટફોર્મ મળે એના માટેનો આ પ્રયાસ એટલે કૃષ્ણાર્પણ, એનું પણ આજે વિમોચન થવાનું છે. અને ત્રીજી બાબત, માનનીય આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બને, અને એના માટે યુનિવર્સિટી દ્વારા એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત એક ક્લબની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જૂન સુધી દર મહિનાના 3જા શુક્રવારે એના કાર્યક્રમો પણ થવાના છે. છત્તીસગઢ વિશે ગુજરાત જાણે, ગુજરાત વિશે
છત્તીસગઢ જાણે, એના કલ્ચર, એનું એજ્યુકેશન, એના રીત રિવાજો, એની રહેણીકરણી, આ બધા જ વિશે અને સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ થાય, ફેકલ્ટી એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામનું આયોજન થાય, એના માટેનો પણ પ્રયાસ છે. ત્યારે ત્રીજો આજનો કાર્યક્રમ એટલે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું લોન્ચિંગ પણ આજે થવાનું છે. એટલે આ કાર્યક્રમનો ત્રિવેણી સંગમ કહીશ તો પણ એ કદાચ ખોટું નહીં ગણાય. આપણા આજના જે વક્તા છે એમનો પરિચય આપું તો આઈપીએસ તરીકે પસંદગી પામ્યા બાદ આજના આપણા માનનીય વક્તા શ્રી આચાર્ય ધર્મબંધુજીએ પોસ્ટિંગ સ્વીકારીને સત્તા અને સાહેબી ભોગવવાને બદલે સમાજ સેવા અને રાષ્ટ્ર સેવાનો માર્ગ પસંદ કરી પૂજ્ય ધર્મબંધુજી ઉપલેટા પાસે નાનકડું એવું ગામ પ્રાસલા ખાતે વૈદિક મિશન ટ્રસ્ટના તેઓ ફાઉન્ડર છે. કદાચ આપ સૌને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ વૈદિક મિશન ટ્રસ્ટ કે જેના ફાઉન્ડર આચાર્ય ધર્મબંધુજી છે, જે મિશનના જે ટ્રસ્ટના પ્રથમ પ્રમુખ હતા એપીજે અબ્દુલ કલામ. આ મિશનના માધ્યમથી સેવાની અગણિત પ્રવૃત્તિઓમાં ધર્મબંધુજી રત છે. ભૂકંપગ્રસ્ત અને દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં કેવળ માનવીઓની જ નહીં પરંતુ અબોલ પશુઓની પણ સેવા શુશ્રૂષા એમનો જીવન ધર્મ રહ્યો છે. પ્રાસલા ખાતે હજારોની સંખ્યામાં માંદી ગાયોની સેવા કરવાનો યજ્ઞ એમના દ્વારા થઈ રહ્યો છે. રોજનું 1 લાખ રૂપિયાનો ઘાસચારાનો ખર્ચ આ આશ્રમ દ્વારા ગાયોની પાછળ કરવામાં આવે છે. કચ્છની અંદર જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો એ વખતે એમના માર્ગદર્શનમાં એમના થકી 100 કરોડ જેટલાના કામો આચાર્ય ધર્મબંધુજી દ્વારા થયા છે. અને અનેક ગામની અંદર સુવિધાઓ ઊભી કરવાનું, દત્તક લેવાનું એક ભગીરથ કાર્ય આપના દ્વારા થયું છે. સ્વામીજીએ હંમેશા રાષ્ટ્રને ઉચિત સેવાને જ પોતાનો પ્રથમ ધર્મ ગણ્યો છે. કોઈ પણ દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું નિર્માણ માત્ર તેના ગૌરવવંતા ઇતિહાસથી થઈ ન શકે, તેના માટે તો વર્તમાન સમયને જ મજબૂત સાધન બનાવીને આગળ વધવું જોઈએ. આ કામ માટે કેળવણીનું માધ્યમ સૌથી વધુ અસરકારક છે એવું દ્રઢપણે માનનારા પૂજ્ય ધર્મબંધુજી રાષ્ટ્રકથા શિબિરોના માધ્યમથી પ્રતિવર્ષ હજારો બાળકો, યુવાનોમાં રાષ્ટ્રભાવનાને જાગૃત કરવા અને મજબૂત બનાવવાનું પ્રેરક કાર્ય કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ આ પ્રકારની 22મી રાષ્ટ્રકથા શિબિર પ્રાસલામાં સંપન્ન થઈ હતી. દેશના સર્વાંગીણ ઉત્કર્ષ માટે જાતિવાદ, પ્રાંતવાદ અને ભાષાવાદથી ઉપર ઉઠીને રાષ્ટ્રવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને આગળ વધવું જરૂરી છે. જ્યાં સુધી આ કામમાં આજના યુવકો સૂત્રધાર નહીં બને ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓનો સાચો ઉકેલ મળવો મુશ્કેલ છે તેમ માનનારા સ્વામી ધર્મબંધુજી યુવા પેઢીમાં અચળ વિશ્વાસ ધરાવે છે. પ્રવર્તમાન રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓના ઉકેલ વિવાદને બદલે સંવાદથી લાવવો જોઈએ એવો એમનો હંમેશા અભિગમ રહ્યો છે. આ અભિગમના ભાગરૂપે આજે આપણી યુનિવર્સિટીના યુવા વિદ્યાર્થીઓ સાથે યુવા અને રાષ્ટ્ર વિષય ઉપર પૂજ્ય સ્વામીજીના વિચારો જાણવાની અને એને અનુસરવાની તક આપણને સાંપડી છે. ત્યારે પૂજ્ય ધર્મબંધુજીને એમના સંવાદ માટે આવકારતા ધન્યતા અનુભવું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ. માનનીય કુલપતિશ્રીને વિનંતી કરું કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત બંને મહેમાનોનું સ્વાગત કરે. સૌપ્રથમ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આચાર્ય ધર્મબંધુજીના સ્વાગત માટે માનનીય કુલપતિશ્રીને વિનંતી કરું છું. યુનિવર્સિટી વતીથી સ્મૃતિ ભેટ, ખાદીનો રૂમાલ અને પુષ્પ દ્વારા માનનીય કુલપતિશ્રી પૂજ્ય આચાર્ય ધર્મબંધુજીને આવકારશે. ત્યારબાદ માનનીય કુલપતિશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત યુવરાજ શ્રી જયવીરરાજસિંહજીનું સ્વાગત કરે.
આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ માનનીય કુલપતિશ્રીના સ્વાગત માટે હું ડૉક્ટર ભાવેશભાઈ જાની, ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર, કે જેઓ ખભે ખભો મિલાવી અને આ આખા આયોજનમાં આપણી સાથે સતત રહ્યા છે એવા ડૉક્ટર ભાવેશભાઈને વિનંતી કરું કે તે માનનીય કુલપતિશ્રીને ખાદીનો રૂમાલ અને પુષ્પગુચ્છથી આવકારે. સૌનો આભાર. આજના આ ઉપક્રમને આગળ ધપાવીએ છીએ. યુનિવર્સિટી દ્વારા 2019-20ના શૈક્ષણિક વર્ષના પ્રથમ સત્રના અહેવાલ સ્વરૂપે, કે જેમાં યુનિવર્સિટી, એના વિવિધ ભવનો, કોલેજો, એની પ્રવૃત્તિઓ તથા વિદ્યાર્થીઓના અમુક સર્જનાત્મક કૃતિઓ વગેરેનું એક મેગેઝિન, અર્ધવાર્ષિક સામયિક આપણે બહાર પાડી રહ્યા છીએ આજના દિવસે, અને એના પ્રથમ અંકનું વિમોચન અત્યારે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કૃષ્ણાર્પણ નામ સાથે આપણે એ સામયિકને આજે આપ સૌની સમક્ષ એનું લોકાર્પણ કરવાનું છે. માનનીય કુલપતિશ્રી અને બંને મહેમાનોને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતે આ સામયિક કૃષ્ણાર્પણનું આજે આપણા સૌ સમક્ષ લોકાર્પણ કરે. વર્ષમાં 2 અંક આ સામયિકના પ્રગટ થનાર છે. સૌપ્રથમ અંક આપણા સૌની સમક્ષ આપણે સૌ એને તાળીઓથી વધાવી લઈશું. કૃષ્ણાર્પણ. પાછળ સ્ક્રીન પર પણ આપ એનું ટાઇટલ પેજની ઇમેજ જોઈ શકશો. સૌનો આભાર. આજના દિવસનો એક બીજો ઉપક્રમ ભારત સરકાર શ્રી દ્વારા એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત નામનો એક નવો પ્રકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે અને યુનિવર્સિટી કક્ષાએ ABSB એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત ક્લબની સ્થાપના કરવાની થાય છે અને એ વિધિવત આપણી એ ક્લબ છે એ આજે અહીંયા આપણે એમને શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આપણી સામે સ્ક્રીન પર આ ઇમેજ આવશે. હું સાયન્સ ફેકલ્ટીના ડીન અને આ EBSB ક્લબના જે ચેરમેન છે એ ડૉક્ટર ઇન્દ્રભાઈ ગઢવી અને EBSB ક્લબના સંયોજક એવા ડૉક્ટર તેજસભાઈને વિનંતી કરું કે બંને અહીંયા સ્ટેજ પર પધારે અને આપણે સ્ક્રીન ઉપર એક ઇમેજ દ્વારા આ ક્લબને સૌની સમક્ષ ખુલ્લી મૂકી રહ્યા છીએ. ગુજરાત રાજ્યને આ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત પ્રકલ્પ હેઠળ છત્તીસગઢ સાથે આપણી ટાઈઅપ કરવામાં આવ્યું છે અને એ ત્યાંના જે શૈક્ષણિક અને સહશૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ છે એને આપણે ઉજાગર કરશું. અહીંયા એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનો લોગો અને છત્તીસગઢ સાથે આપણું જે ટાઈઅપ છે એની વિગતો બતાવી છે. સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક આદાન પ્રદાન ઉપરાંત બીજી અનેક પ્રવૃત્તિઓ છે એ આ ક્લબના નેજા નીચે તેજસભાઈ, ઇન્દ્રભાઈ અને આપણી યુનિવર્સિટી દ્વારા હાથ ધરવાની છે. આપણે સૌ આ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત ક્લબને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપીએ અને એની તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે સૌ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈએ એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ ગઢવી સાહેબ. થેન્ક યુ તેજસભાઈ. આજના જ્ઞાન સપ્તાહ 2020ના પ્રથમ દિવસનો જે મુખ્ય ઉપક્રમ છે એ આપણે આગળ વધારીએ છીએ અને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પૂજ્ય આચાર્ય ધર્મબંધુજીને હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ પધારે અને આપણને સૌને યુવા અને રાષ્ટ્ર એ વિષય ઉપર પોતાનું વક્તવ્ય આપે. आदरणीय पूज्य धर्मबंधु से प्रार्थना है युवा और राष्ट्र इस विषय पर अपना उद्बोधन करें. अधितिष्ठति शौर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ओम शांति शांति शांति. Honorable Vice Chancellor Sir, His Highness Javeer Singh Ji, respected all professor, my dearest students, boys and girls. मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है आप लोगों के साथ कुछ अपने थॉट्स शेयर करके मुझे अत्यधिक खुशी होगी. अभी हमें बात करना है यूथ एंड नेशनलिज्म. तो राष्ट्र क्या चीज़ है ये जानना अत्यंत आवश्यक है. जितने भी मॉडर्न हिस्टोरियन हैं, यूरोपियन राइटर्स हैं, उन लोगों का एक ही कंसेप्ट था कि भारत में नेशन के लिए कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया नहीं था. अर्थात भारत देश में राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं है, यह इसकी कल्पना नहीं है. यहाँ रीजनलिज्म में लोग बिलीव करते हैं
कास्टिज्म में लोग विश्वास करते हैं, यहाँ नेशनलिज्म के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा जो यूरोप के टॉप मॉडर्न हिस्टोरियन हैं उनकी समझ थी। लेकिन इस देश का नहीं, मानव की लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद, और यजुर्वेद के 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र में एक आइडिया दिया गया था, राष्ट्रदा राष्ट्रम मयि देहि। हे ईश्वर, हमारे मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता प्रदान करो। राष्ट्र कहते किसे हैं, इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्त में ऋषि यास्क ने लिखा था, यत राजते तद राष्ट्रम। जिस देश के सिटीजन अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से चमकते हैं, अपना परिचय दुनिया के सामने रखते हैं, उसे राष्ट्र कहा जाता है। जमीन के टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहा जाता, कंट्री की सीमाओं को राष्ट्र नहीं कहा जाता। वहाँ के देश के जो सिटीजन हैं, उसकी जो वैल्यूज है, उसके हेरिटेज हैं, उसके थॉट्स हैं, वह राष्ट्र होता है। यह राष्ट्र इतना विकसित और समृद्ध था जो दुनिया के लोगों ने इसकी प्रशंसा अपने ग्रंथों में किया है। इस देश की सीमाएं कभी कैलाश से लेकर कोलंबो तक और कभी अराकान से लेकर के खुरासान तक हुआ करती थी। आज के जो आप स्टूडेंट हैं, शायद अराकान और खुरासान का नाम काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। कोई बताना चाहते हैं अराकान और खुरासान किस देश में है? म्यांमार की जो सबसे ऊंची पहाड़ी जिसे बर्मा कहा जाता था, उसका नाम अराकान है, और ईरान के नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी उसका नाम खुरासान कहा जाता था। तो अराकान से लेकर खुरासान तक, और तिब्बत में कैलाश और श्रीलंका में कोलंबो, तो कैलाश से लेकर कोलंबो तक और अराकान से लेकर के खुरासान तक, यह एक भारत देश और इसकी एक श्रेष्ठ संस्कृति थी। पॉलिटिकल रूप से हम लोगों में डिस्क्रिमिनेशन अवश्य था, लेकिन कल्चरल हमारी यूनिटी थी, नेशनल यूनिटी थी, और हेरिटेज के ऊपर हमारी यूनिटी थी। यह देश सशक्त और मजबूत, इसे एक राष्ट्र कहा जाता था। लेकिन इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए दुनिया के लोगों ने 13 टाइम इस देश पर अटैक किए। इस देश पर पहला आक्रमण 460 BC में किया गया, जो पर्शियन के द्वारा किया गया, लेकिन वह अटैक नाकामयाब रहा। इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए 4 मई 327 BC को द ग्रेट ऑफ ग्रीस अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने उन्हें ब्यास रिवर क्रॉस नहीं करने दिया, और मुल्तान के किंग चौहान की गदे की मार खाकर 6 महीने के बाद बगदाद में अलेक्जेंडर ने दम तोड़ दिया था। इस देश को तबाह करने के लिए तीसरा आक्रमण 100 BC में कुषाण लोगों ने किया, जिसे किंग ऑफ कनिष्का कहा जाता था, जिसे आप यूची लोगों के नाम से जानते हैं, लेकिन वो भी दुनिया से मिट गए। हिंदुस्तान को मिटाने का ख्वाब उनका कामयाब नहीं हुआ। इस देश को तबाह करने के लिए चौथा आक्रमण 79 AD में किया गया, जो शक लोगों ने किया। शक भी दुनिया से मिट गए, लेकिन हिंदुस्तान आज भी आबाद है। इस देश को बर्बाद करने के लिए पांचवा आक्रमण 535 AD में किया गया, जो हूण लोगों ने किया। हूण भी दुनिया से मिट गए, लेकिन हम आज भी सुरक्षित और सलामत हैं। इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए
छठवां आक्रमण 650 ईस्वी में किया गया, जो अरब के लोगों ने किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए सातवां आक्रमण 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सिंध के राजा दाहिर का कत्ल किया और सिंध के ऊपर अपने हुकूमत रिसीवर बैठाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय तक वो चला, फिर उनको वापस अरब जाना पड़ा था। तो आप ये देखिए, अभी तक इस देश की रक्षा लोग करते रहे, लेकिन सातवें अटैक मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने से हमारी डिफीट प्रारंभ हुई। आठवां आक्रमण इस देश पर 1026 ईस्वी में 1026 एडी में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया, जो सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया गया और उसे डिमोलिस्ट किया गया और 16 टाइम उसी टेम्पल को टाइम पर लोग लूटते और उसे चले गए। इस देश पे 9वां अटैक 1192 एडी में हुआ, जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। और आप लोग को बताया जाता है कि 16 बार चौहान ने गौरी को माफ़ किया, लेकिन मैंने किसी हिस्ट्री के बुक में आज तक पढ़ा नहीं है। सिर्फ गौरी और चौहान का 2 बार मुकाबला हुआ था। एक बार चौहान ने गौरी को इतना मारा था कि उसने थूक करके चाटा था, और कितनी बार अल्लाह कुरान की कसमें खाई थी कि दुनिया में कहीं भी युद्ध करेंगे, चौहान के सामने हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ही देश के लोग गौरी का मदद किया और वापस चौहान पर अटैक हुआ और हमारी 1192 में इस देश की डिफीट हुई। 10वां आक्रमण इस देश में 1526 एडी में किया गया, जो मुग़ल अटैक आया और राणा सांगा की डिफीट हुई। पहली बार राणा सांगा युद्ध में जीते थे और दूसरी बार उनकी बाबर के सामने हार हुई और मुग़ल एम्परर वहाँ से इस्टेब्लिश हुआ। इस देश पर 11वां आक्रमण 1560 एडी में हुआ, जो पुर्तगाल लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया। दीव दमन गोवा को उन्होंने कैप्चर किया और वहाँ अपना राज्य इस्टेब्लिश किया। इस देश पर 12वां आक्रमण 1763 में हुआ, जो फ्रांस ने इस देश पर अटैक किया और फ्रांस ने पांडिचेरी को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर कुछ समय के लिए पांडिचेरी फ्रांस के अधिकार में रहा। और इस देश का लास्ट में 13वां आक्रमण आप जानते हैं, ब्रिटिशर लोगों के द्वारा हुआ। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू फूट इन इंडिया, थॉमस रॉ, उसके विषय में आप लोग काफ़ी हमसे बेहतर जानते और पढ़ते होंगे। तो ये आप देखिए, इस देश को तबाह करने के लिए इन आक्रमणों का परिणाम क्या निकला। जो ये देश कैलाश से लेकर कोलंबो तक था और अराकान से लेकर के खुरासान तक था, यह देश इन आक्रमणों ने इस देश की सीमाओं को कम कर दिया। 535 में खुरासान नाम की पहाड़ी ईरान में जाकर मिल गई और वो ईरान इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। 1761 में काबुल और कंधार को अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान देश डिक्लेयर कर दिया। 1761 से पहले अफ़गानिस्तान भारत के अंदर था। 1815 से पहले दुनिया में नेपाल नाम का देश नहीं था। नेपाल पार्ट ऑफ इंडिया था। 1815 के बाद नेपाल एक स्वतंत्र देश बन गया। 1911 के पहले श्रीलंका नाम का कोई देश नहीं था, वह इंडिया के अंदर था। और 1911 एडी में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट इंडिया से राष्ट्र बन गया। 935 एडी में म्यांमार बर्मा नाम का देश बन गया। वो पहले इंडिया के अंदर था
1935 से पहले म्यांमार नाम का कोई देश नहीं था। 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और 1950 से पहले कैलाश तिब्बत भारत में था, और 1950 में कैलाश तिब्बत अलग हो गए, वो पार्ट ऑफ चाइना हो गए, वहाँ चाइना में उनका मर्ज हो गया। 1954 तक बेरुवादी नाम का क्षेत्र हमारे देश में था, जो आज बांग्लादेश के अंदर है। 1957 में आप समझ सकते हैं कि जो चाइना ने हमारे कुछ ग्लेशियर पार्ट को लिया था, वो भी हमारे देश में थे। 1962 में अक्साई चीन का एरिया चाइना के पास चला गया, और 1982-83 में अरुणाचल प्रदेश की काफ़ी लैंड चाइना ले गया, और 1992 में 3 बीघा नाम का क्षेत्र हमने दे दिया बांग्लादेश को, और 2017 में बॉर्डर को ठीक करने के लिए हमने 10,000 हेक्टेयर लैंड बांग्लादेश को अधिक दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने वो नहीं बताई थी, 1948 में जो कश्मीर का डिवीज़न था, शायद उसके विषय में आपको ज़्यादा ज्ञान हो गया होगा, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन वहाँ का भी काफ़ी पार्ट पाकिस्तान के अंडर में आ गया था। तो ये देश जो कैलाश से लेकर कोलंबो तक के राष्ट्र था, जो अराकान से लेकर के खुरासान तक था, यह राष्ट्र आज लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक और गंगानगर से लेकर ईटानगर तक 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक कंट्री आज हम लोगों के पास विरासत में कहें, धरोहर में कहें, वो हमारे सामने है और हमारे पास है। कोई भी देश की महानता इसलिए नहीं हो सकती है कि उसका हिस्ट्री बहुत अच्छा है। कोई भी देश इसलिए दुनिया में महान नहीं हो सकता कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं। कोई भी राष्ट्र इसलिए महान नहीं हो सकता कि उसके पास सिर्फ एजुकेशन, ज्ञान और नॉलेज है। ऐसा अगर होता तो हम आपके सामने कुछ बात रखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा हिस्ट्री से कोई देश महान नहीं होता। हमारे देश की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 3000 ईयर्स की है, और अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अनलिमिटेड ईयर्स की न जाने कितने हजारों साल की है। वह एक रिसर्च की बात है। लेकिन हमारे ही साथ की हिस्ट्री इजिप्ट की भी थी, और इजिप्ट की भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 3000 ईयर्स के आसपास की है। ऐसा नहीं कि आपके संस्कृति में बड़े बहादुर, बड़े योग, बड़े ब्रेव लोग पैदा हुए इसलिए आपका देश महान है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रीस सिविलाइजेशन में अलेक्जेंडर पैदा हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने का उसने ख्वाब देखा था। मंगोलियन सिविलाइजेशन में चंगेज खां पैदा हुआ, जो सिकंदर से 10 गुना बड़ा एम्परर इस्टेब्लिश किया। पोलैंड से लेकर के नॉर्दर्न चाइना तक चंगेज खां की हुकूमत चलती थी। लेकिन मंगोलियन सिविलाइजेशन आज पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है। ग्रीस सिविलाइजेशन पूरी दुनिया से मिट चुकी है। और सबसे बड़ी जो बात है, पर्शियन सिविलाइजेशन, वो इस वर्ल्ड से ख़त्म हो गई। और रोमन सिविलाइजेशन पूरे दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। तो ये 5 सिविलाइजेशन, 5 सभ्यताएं जो दुनिया की ग्रेट एनिशिएंट सिविलाइजेशन थी, जिसके लोगों ने बड़े बहादुर लोग पैदा किए, इनकी हिस्ट्री भी रिच थी। लेकिन ये दुनिया से क्यों ख़त्म हुए, यह सोचने की बात है। वो 5 सभ्यताएं, सिविलाइजेशन जो समाप्त हुई, वो रोमन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मंगोलियन सिविलाइजेशन एंड ग्रीस सिविलाइजेशन। जिस देश की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो आज दुनिया में बहुत डेवलप हो रहे हैं। जैसे अमेरिका 460 ईयर्स उनकी टोटल हिस्ट्री है। आप
ऑस्ट्रेलिया देखिए 250 ईयर्स की उनकी हिस्ट्री है। आप स्विट्जरलैंड को देखिए 200 ईयर्स की उनकी हिस्ट्री है। लेकिन आज वो दुनिया में वेल सिविलाइज्ड समझे जाते हैं, डेवलप समझे जाते हैं, इथिक्स और वैल्यूज के प्रीच करने वाले समझे जाते हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर हिस्ट्री बेस होता तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर आप देखिए 1958 में जब सिंगापुर मलेशिया अलग हुआ, कोई इसमें अगर सिंगापुर गए हों और नहीं गए हों तो कभी जाना, सिंगापुर एयरपोर्ट के सामने काले से पत्थर पर लिखा है कि हम इस सिंगापुर को कलकत्ता सिटी जैसा बनाना चाहते हैं। 1958 में सिंगापुर अपने आप को कलकत्ता बनाना चाहता था और 2017 में कलकत्ता से चीफ मिनिस्टर जब सिंगापुर गई तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता को सिंगापुर बनाना चाहती हूँ। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है। क्यों ऐसा है? अगर हिस्ट्री ही बेस होता तो इन देशों को डेवलप नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे देश के अंदर प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है जिसे हम गरीब हैं या हमारे पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आप देखिए 7,516 किलोमीटर हमारे देश में कोस्ट लाइन है, समुद्र का इतना बड़ा किनारा जो दुनिया में 2-3 देश को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास नहीं है। 3,500 किलोमीटर इस राष्ट्र में हिमालयन रेंज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ 3500 किलोमीटर भारत देश के पास है। इसके अलावा इतना डेजर्ट हमारे पास है जो इजराइल जैसे 5 देश हम बना सकते हैं, इतना डेजर्ट हमारे देश के अंदर है। 55,000 टाइप्स हमारे देश में प्लांट्स हैं, वनस्पति हैं, जो काउंटिंग हो चुकी है। वर्ल्ड में किसी कंट्री में इतने टाइप के प्लांट्स नहीं हैं। और हमारे देश में इतना घना फॉरेस्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम का हेलीकॉप्टर जब जंगल में क्रैश कर गया तो उसे ढूंढने के लिए 15 दिन लगे थे, लेकिन 15 दिन के अंदर भी हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, क्योंकि उस जंगल में दिन में अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी, प्रकाश पहुंचती ही नहीं। ऐसा घना जंगल कहीं भी नहीं है। इसके अलावा कोल, लिग्नाइट, बॉक्साइट, डोलामाइट, मैग्नीज, कॉपर, सिल्वर, ये तमाम प्रकार की हमारे देश के अंदर प्राकृतिक संपदा है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इतना प्लेन लैंड चाइना के पास भी नहीं है। चाइना हमारे देश से 3 गुना बड़ा देश है। चाइना का जोग्राफिकल स्टेटस 95,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, हमारा देश 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन खेती की ज़मीन हमारे देश में ज़्यादा है, चाइना में कम है। हमारे देश में 1,17,853 हेक्टेयर लैंड है और चाइना में 1,03,850 हेक्टेयर लैंड है। तो खेती की ज़मीन भी हमारे देश में ज़्यादा है, चाइना से अधिक ज़मीन है। लेकिन फिर भी ये देश, ये राष्ट्र गरीब क्यों है, कमज़ोर क्यों है, ये आप लोगों को सोचना है और इस पर रिसर्च करना है। तीसरी बात कहते हैं ज्ञान अगर बेस। आप देखिए जिस देश के पास प्राकृतिक संपदा नहीं है वह देश दुनिया में डेवलप देश है। आप जापान देखिए, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। 80% अपनी आवश्यकता की चीज़ वो इंपोर्ट करते हैं। आप देखिए सिंगापुर देखिए, वहाँ वाटर क्राइसिस इतना है कि जो लोग बाथरूम में पानी नहाते हैं, टॉयलेट में यूज़ करते हैं, उसी पानी को रिसाइकलिंग करके पीने के काम में लाते हैं। प्राकृतिक संपदा उनके पास बिल्कुल नहीं है।
लेकिन दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री में सिंगापुर का स्थान है। आप जापान को लीजिए, जर्मन में देखिए कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है, स्विट्जरलैंड में आप देखिए कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन दुनिया के रिच कंट्री, समृद्ध कंट्री, प्रॉस्पर कंट्री में उनके नाम आते हैं। तो आप ये सोचिए ये भारत देश का स्थान क्या है। अभी 2019 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, आउट ऑफ 117 कंट्री में भारत का स्थान 102 नंबर पर आया है। अर्थात हमसे सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खा सकते। अभी आपको हमने हिस्ट्री की बात समझाया तो आपने कहेंगे कि हिस्ट्री से क्या लेना देना है, वो तो पास्ट है। लेकिन आप जो प्रेजेंट में आप बात करना चाहते हैं तो हम वो बात आपसे करना चाहते हैं कि सम इशूज फेसिंग इंडिया, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसका भारत देश सामना कर रहा है। जो सबसे बड़ी भयानक समस्या इस राष्ट्र के लिए है वो सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी। 3 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, 3 करोड़ लोग वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे और 34 करोड़ इंडिया में रहते थे। आज भारत देश की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 124 करोड़ ऑफिशियल पॉपुलेशन है और 134 करोड़ अनऑफिशियल पॉपुलेशन है। तो हमने आज़ादी के 72 ईयर्स में 100 करोड़ पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। और इसका रीज़न है कि जो इंडिया की लैंड है ह्यूमन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब रसिया में आप जाएं, यहाँ पर -50 टेम्परेचर है और +50 टेम्परेचर है। रसिया में 6-6 महीने लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इतना ठंडी पड़ती है, इसीलिए सबसे कम पॉपुलेशन रसिया की होती है। लेकिन भारत में -50 टेम्परेचर, +50 टेम्परेचर, तो मनुष्य को पैदा करने का सबसे अच्छा क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड में अगर है तो ये भारत की धरती पर है। और यहाँ पर आप देखिए रशिया है, आप यूरोप में देखिए, ये इतना नहीं हो पाता है चूँकि वहाँ कोल्ड ठंड अधिक पड़ती है। तो यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये बहुत ही आवश्यक है।